A very good morning to everyone and welcome to our new series. In fact, I would say it's a course, Raj Yoga Meditation, which is the forte of Brahma Kumaris. As we all always listen that Raj Yoga Meditation happens and takes place by them and they conduct various sessions at various places. So this would be a course for this whole month at our family. I would request Sangeeta Didi to please brief us about the course. Didi, welcome to the session. Om Shanti. Om Shanti Didi. Good morning, all of you, our beautiful angel family. So, if you recall, in the month of June, we had discussed about the yoga practices and the yoga effect of yoga on our regular day-to-day life, on our health, etc. And all of us had agreed. And for that yoga, we need to understand the meditation. One aspect of yoga was meditation, which also we needed to understand. So, and then we had collectively decided that we would do that meditation course and the basic foundation course, which is the core foundation of Brahma Kumaris. The whole knowledge which you are hearing since 2 years is nothing but the foundation. So after showing you the whole tree, today we are going to the foundation. So this whole month we will be doing the foundation. Everyone is okay? If you all recall your promises, and this foundation course is actually the reality of life, and it answers the various questions of our life. Like many times we might say, भगवान को ऊपर वाला क्यों कहते हैं? साइड वाला नहीं बोलते, नीचे वाला नहीं बोलते, तो ऊपर वाला ही क्यों बोलते हैं? तो इसी तरह फिर हम कहते हैं कि स्वास्तिक, हमेशा जो भी कुछ करते हैं तो स्वास्तिक लगाते हैं. क्यों स्वास्तिक करते हैं? क्यों और कुछ नहीं कर सकते? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस स्वास्तिक? इसी तरह कहते हैं कि जब कोई मर जाता है तो कहते गया गया, और गया कहाँ? ऊपर. भाई वो मरा इधर, शरीर इधर पड़ा है, फिर ऊपर क्यों बोलते हैं वो ऊपर गया? ऊपर का एड्रेस कौन सा है? तो देर आर सो मेनी बिलीव्स विच वी आर गोइंग थ्रू and we are following the beliefs, and we also teach the same to others. We pass it on to our generations, but maybe we also don't know the answers of it. So therefore this foundation course will answer all these queries of our life. So I'm sure everyone will be okay. And this foundation course, I request that none of us should miss in the whole Jindal family. Everyone agrees? Because every chapter will be new. It won't be just based on mind, but it is based on beliefs. Until now, we have done everything based on our mind, attitude, memories, sanskars. But this is based on our beliefs, realities of life, and what all patterns we are following. It is based on all these things. So therefore, it's a very interesting episode we are going to start this month. And for this, we have our very powerful speaker, Jagrati Ben of Bombay, Vilepar. So she will be starting this session with you today. So on to Pushpanjali Ben. She will introduce you. Thank you so much, Sangeeta Didi. So today's, as Didi mentioned, today's speaker would be Jagruti Didi. She has done her graduation in commerce. She is rendering her services in Brahma Kumaris since last 20 years. She is the faculty of business and industry wing of Brahma Kumaris, which is a special wing of their organization. She participated in many seminars and abhiyans which takes care at Mumbai side and the region of Maharashtra. She was also a part of car rally in Assam. At present, she is rendering her services at Brahma Kumaris at Viraj Management Center. Didi, welcome, and we are really blessed to have you here.
We would request you to take over the session and share the learnings for Raj Yoga meditation. Over to you. थैंक यू एंड ओम शांति। आप सभी को आवाज सुनाई दे रही है? थैंक यू। मुझे बहुत खुशी है कि आज जिंदल फैमिली से मिलना हो रहा है। और मैं जहाँ पर रह रही हूँ, अभी सेवा दे रही हूँ, इट्स बोईसर, इट्स इन महाराष्ट्र। आपने शायद बोईसर सुना होगा, बिकॉज यहाँ पर भी जिंदल है और हमारी बहुत बारी यहाँ पर प्रोग्राम्स आदि होते हैं। एंड जैसे जिंदल में कंटिन्यूअस प्रोग्राम्स चल रहे हैं, उसी तरह से एक विराज प्रोफाइल्स कंपनी है, इसमें भी कंटिन्यूअस हमारे प्रोग्राम्स चलते हैं। लॉकडाउन में ही ये हमारा आश्रम जो सेंटर है यहाँ पर नया ओपन हुआ है। सो हम जो अभी अभी दीदी ने बताया कि ये बहुत इम्पोर्टेंट लेसन्स होंगे और आई वोंट से कि लर्निंग होगी। मैं ये कहूंगी कि ये कुछ एक्सपेरिमेंट्स होंगे, कुछ हमें नया जानना, नया सुनना, प्लस हम कुछ नए एक्सपेरिमेंट्स भी करेंगे, क्योंकि हमने बहुत सारी बातें सुनी हुई है। ये एक टॉपिक ऐसा है जिसके लिए कहा जाता है, जितने मुंह उतने ओपिनियंस। फॉर द सोल हम बहुत बारी अग्री करते हैं इन बातों को, बट फॉर द सुप्रीम फादर गॉड बहुत सारी बातें डिफरेंट डिफरेंट कही जाती है। तो आज हम उन्हीं बातों को समझने का प्रयास करेंगे कि हमारी बिलीफ सिस्टम क्या है और उसके पीछे राज क्या है और एक्चुअली सत्यता क्या है। तो मैं आपसे कुछ स्लाइड्स पहले शेयर करना चाहूंगी। आपको ये स्लाइड दिखाई दे रही होंगी? हाँ दीदी। सो ये आज मैं समझती हूँ टुडे इज आवर सेकेंड डे, राइट? सो फर्स्ट डे हमने क्या किया था, वही हम थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। हमने वेरी फर्स्ट डे इंट्रोडक्शन ऑफ माई सेल्फ, इंट्रोडक्शन ऑफ द सेल्फ, कि मैं कौन हूँ, एंड इट वाज आई एम अ पॉइंट ऑफ लाइट। एक बारी फॉर 1 मिनट उसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि मेडिटेशन कोर्स इज नॉट जस्ट ओनली द इंफॉर्मेशन, हम उसको उसके साथ साथ प्रैक्टिस भी करते जाएंगे। सो हम 1 मिनट के लिए अपनी आंखों को बंद कर लेते हैं। आप सभी साथ साथ रहेंगे एंड क्रिएट दिस थॉट, मैं एक चमकता हुआ व्हाइट श्वेत रंग का शांति का सितारा मस्तक के अंदर विजुअलाइज करिए, दोनों ब्रेन्स के बीच में a sparkling star, point of light. I am a divine soul. Okay, you can open your eyes. Come back. ये सबसे बड़ी सत्यता है दैट मैं एक अमर आत्मा हूं। इसको मुझे बार बार अपने आप को स्मृति दिलानी है, बस इसे हम अपने आप को भूल गए हैं। सो हमने लास्ट टाइम समझा था आई एम अ पॉइंट ऑफ लाइट, प्लस हमने समझा था कि आत्मा की क्वालिटीज क्या है। आत्मा को हम सतोगुणी कहते हैं। 7 वैल्यूज ऑफ द सोल इज पावर, प्यूरिटी, हैप्पीनेस, लव, पीस, नॉलेज, ब्लिस। इसको हम अगर हिंदी में कहे, ज्ञान, सुख, शांति, प्रेम, पवित्रता, आनंद, शक्ति। मुझे मैसेज में आया दिस इज आवर फर्स्ट डे। मुझे जो इंफॉर्मेशन मिली है दिस इज आवर सेकेंड डे। आप रिस्पॉन्ड करेंगे प्लीज? Didi, this is the first day. This is first day, Didi. ओके, सॉरी, क्योंकि मुझे बताया था उसके अकॉर्डिंग हम डे सेकेंड पर जा रहे हैं। संगीता बेन, आप ज्वाइन किए हुए हैं? यू आर स्टिल देयर? She's संगीता left. बेन,
Yes, She's ma'am. left. तो फर्स्ट डे हमारा सोल का नहीं हुआ है? No, Didi, this is the first class of this Raja Yoga meditation. So today we started. ओके, सो मैं फिर थोड़ा सा चेंज करती हूँ, जस्ट वेट। तो हम, अच्छा, मतलब आत्मा का लेसन नहीं हुआ है, यू मीन टू से? No, no, no. This would be the introduction and the very first session. We started today only. ओके, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। मैं सिर्फ एक बार ही चेंज कर लेती हूँ स्लाइड एंड Sure, sure. सो ओके, जस्ट अ मिनट। आपको ऑर्गेनाइजेशन के बारे में तो 100% पूरी चीजें पता होंगी, सो आई डोंट हैव टू गिव द इंट्रोडक्शन ऑफ। दीदी ने जैसे कहा कि दिस इज आवर बेसिक कोर्स, ब्रह्मा कुमारी का जो मेन जो कोर्स है वो यही है। पूरा बता दीजिए दीदी, आई थिंक। ओके, ठीक है, 1 सेकेंड। हाँ, सो ब्रह्मा कुमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो शुरू हुआ 1936-37, और शुरुआत हुई जो सिंध, उस समय सिंध हैदराबाद जो फिलहाल पाकिस्तान में है, उस समय तो पार्टीशन नहीं हुआ था, सो वहां से शुरुआत हुई थी। दादा लेखराज जिनको हम कहते हैं, जिनको अभी हम ब्रह्मा बाबा कहते हैं, उनके द्वारा ये ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत हुई थी। और जब पार्टीशन हुआ तो 1950 में ऑर्गेनाइजेशन पूरी तरह से इंडिया शिफ्ट हुई माउंट आबू में, और वो हेडक्वार्टर्स है माउंट आबू। और वर्तमान समय आई थिंक 140 कंट्रीज में अराउंड 8,500 आश्रम है। जैसे अभी दिल्ली का जो संगीता दीदी जो सेंटर पर रहते हैं, ऐसे 8,500 आश्रम्स है, प्लस जिसको हम कहते हैं कि जो रजिस्टर्ड नहीं है, ऐसे 50,000 है। जैसे मैं जिस आश्रम पर हूँ, इट्स नॉट रजिस्टर्ड। क्यों? क्योंकि ये एक ऑर्गेनाइजेशन के, एक कंपनी के, एक फैक्ट्री के प्रेमाइसिस में ये सेंटर बना है, उन्होंने सेवा के पर्पस से दिया है। एंड सेकेंड थिंग इज कि जो भी सेवाएं दी जाती है ब्रह्मा कुमारीज में, वो फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। वर्तमान समय जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के एडमिनिस्ट्रेटर है, शी इज दादी रतन मोहिनी जी। शी इज 100 years old। और से इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि वो कितने एक्टिव है, इम्पोर्टेंट ये है कि वो कितने इफेक्टिव है। जैसे अभी मैं रिसेंटली माउंट आबू से ही आई हूँ, और वहां पर जब वो स्टेज पर जब उनको लाया जाता था, उनकी प्रेजेंस हमें इतनी खुशी देती थी। दो शी कुड नॉट स्पीक टू अस, टॉक टू अस, देन आल्सो वी वर सो हैप्पी टू सी हर। उनके अंदर वो रूहानियत, वो जो प्यूरिटी वाइब्रेशंस जो उनके होते थे, वो हमें बल भरते थे। तो ये उनकी स्पेशलिटीज है जो हमारे बड़े हैं, जो हमें प्रेरणा देते हैं। ब्रह्मा कुमारी के अंडर 20 विंग्स है, लाइक आर्ट एंड कल्चर, एडमिनिस्ट्रेटर विंग, बिजनेस एंड इंडस्ट्री विंग, ग्राम विकास, मेडिकल विंग, यूथ विंग, विमेन्स विंग। तो बिजनेस एंड इंडस्ट्री विंग के अंतर्गत हम ये कंपनीज के अंदर सेवाएं करते हैं, जिसके लिए हमारे डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज बने हुए हैं, जैसे सेल्फ मैनेजमेंट, लीडरशिप, देन स्ट्रेस फ्री लिविंग। तो ये अलग अलग टॉपिक्स बने हुए हैं, जिसके बारे में आपके साथ तो बातें हुई ही होंगी, बस कंटिन्यूस आपके प्रोग्राम्स चल ही रहे हैं। आज का जो फर्स्ट लेसन है, दैट इज हु एम आई। मैं आपके साथ स्क्रीन को शेयर कर लेती हूँ। इट्स आपको दिखाई दे रही है ये स्क्रीन? ओके, सो डे 1 इज अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ। अभी यहाँ प्रश्न ये आता है, क्या मैं अपने आप को नहीं जानती हूँ? क्या लगता है, हम अपने आप को जानते हैं पुनीत भाई? डू वी नो आवरसेल्व्स? क्या लगता है? बिकॉज क्या होता है, हम अक्सर करके लोगों को कहते हैं कि नहीं नहीं, आप हमें समझने का प्रयास करो, राइट? क्योंकि मैंने अपने आप को नहीं समझा है। सो क्यों हम ऐसे कह रहे हैं कि हम अपने आप को समझने की आवश्यकता है? क्योंकि हम जो अपने आप को मान रहे हैं, समझ रहे हैं, वो किस आधार पर कर रहे हैं? आई स्टिल रिमेम्बर वी हैड गॉन फॉर अभियान, जिसमें हमारे कुछ कंपनीज में कंटिन्यूअस प्रोग्राम थे, और एक प्रोग्राम में हम गए थे
वहां हमारा प्रोग्राम पूरा हो गया और हमारे पास कुछ टाइम बचा था, तो बाजू में ही एक फैक्ट्री थी। हमने वहां बताया कि हम ऑलरेडी यहाँ प्रोग्राम करने आए हैं, विल टेक 45 मिनट्स, अगर आपको प्रॉब्लम नहीं हो तो हम आपके वर्कर्स के साथ, आपके एम्प्लॉयज के साथ थोड़ा ज्ञान की चिट चैट करेंगे। तो उन्होंने कहा कि हम बहुत बिजी है, नेक्स्ट टाइम करिए। तो हमने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, बट अब क्या आप बता सकते हो कि आप कौन हो? तो वो भाई को अच्छा नहीं लगा। ही सेड कि मैंने मना किया, दैट्स व्हाई यू आस्किंग मैं कौन हूँ। मैंने कहा नहीं नहीं, प्लीज आप सिर्फ इस प्रश्न का जवाब दे दीजिए, आप कौन हो? तो भाई ने कहा मैं एचआर मैनेजर हूँ। तो हमने कहा ब्रदर, हमने आपकी पोजीशन तो पूछी ही नहीं कि आप एचआर मैनेजर हो या सेल्स मैनेजर हो या परचेज मैनेजर हो। वी जस्ट आस्क्ड यू आप कौन हो। तो फिर भाई ने कहा मैं मिस्टर मल्होत्रा हूँ। मैंने कहा ब्रदर, हमने आपका नाम सरनेम तो पूछा ही नहीं है, आप मिस्टर मल्होत्रा हो, मिस्टर अग्रवाल हो, मिस्टर मेहता हो, हमने नहीं पूछा, आप कौन हो? तो कंफ्यूज हो गए। तो फिर उन्होंने कहा मैं हिंदू हूँ। हमने कहा हमने आपका रिलीजियन भी नहीं पूछा, आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, नहीं, आप कौन? देन ही सेड, कंफ्यूज होकर और फ्रस्ट्रेटेड होकर ही सेड मैं इंडियन हूँ। हमने कहा आपकी नेशनैलिटी भी नहीं पूछी है। फिर वो कहने लगा भाई बहन जी, मैं पुरुष हूँ। हमने कहा आपका जेंडर नहीं पूछा, वो तो हमें आप दिख ही रहे हो। फिर अभी सोचने लगा अभी मैं क्या जवाब दूं। फिर उन्होंने कहा बहन जी आप ही बता दीजिए हम कौन है। हमने कहा वही तो बताने आए हैं कि ये दुनिया की सबसे आसान क्वेश्चन भी है और सबसे गहरी पहेली भी है कि हम कौन है। जो हम दूसरों को इंट्रोडक्शन देते हैं वो हम अपने पोजीशन के आधार पर, अपने रिलीजियन के आधार पर, अपनी नेशनैलिटी के आधार पर हमारा जो आंतरिक सत्य है, जो स्व का सत्य है, वो आध्यात्मिकता कहती है कि हम एक शक्ति है, एक एनर्जी है। जैसे दीदी अभी बता रहे थे, किसी की मृत्यु होती है तो हम क्या कहते हैं, ये हमें छोड़कर चले गए। अच्छा, कौन चला गया? क्या लगता है कौन चला गया? जो सामने उनका शरीर पड़ा है, तो शरीर तो है, तो हमारा प्यार किससे था? हम क्यों दुखी हो रहे हैं, क्यों रो रहे हैं? क्या हमारा प्यार उस देह से था, उस शरीर से था? परंतु शरीर से प्यार होता था तो हम रख लेते थे, हम उसको भी नहीं रखते हैं, जल्दी जल्दी घर से रवाना करते हैं, विदाई देते हैं, अग्नि संस्कार या दफना देते हैं। तो मुझे जिनसे प्यार था वो कौन? तो उनके लिए हम कहते हैं वो एक आध्यात्मिक शक्ति थी, जिसको हम कहते हैं आत्मा, रूह, स्पिरिट, सोल। और ये वास्तविकता है जिसको अब तक हम सिर्फ बोलते आए या सुनते आए, कभी एक्सपीरियंस नहीं किया कि ये मैं हूं। जबकि ये सत्य है, सनातन सत्य है कि जो आत्मा है वो शरीर को धारण करती है, जन्म लेती है, और जब जन्म लिया है उसका मृत्यु भी निश्चित है। ये सत्य होने के बावजूद हम इसको स्वीकार नहीं कर पाते, क्योंकि हमने कभी वो प्रैक्टिस की ही नहीं। हम छोटे बच्चों को ये जरूर सिखाते हैं कि आप के हाथ कहाँ है तो बच्चा दिखाएगा, आपका सिर कहाँ है तो बच्चा दिखाएगा, आपकी आंखें कहाँ है तो वो भी जरूर दिखाएगा, पर आत्मा कहाँ है वो हम ना ही सिखाते हैं ना ही सीखते। क्योंकि ये एक ऐसी शक्ति है, ऐसी चीज है जो इन आंखों से नहीं देख सकते। आप सभी अभी ध्यान से मैं जो बोल रही हूँ वो सुन रहे हैं, सभी ध्यान से सुन रहे हैं, कानों में आवाज आ रही है, ठीक है? पर मेरी आवाज दिखाई दे रही है? दिखाई दे रही है मेरी आवाज? नहीं, दिखाई नहीं देगी, सुनाई देगी, दिखाई नहीं देगी। क्योंकि जो ये साउंड है, जो आवाज है, ये एक शक्ति है, ध्वनि शक्ति, देख नहीं सकते इन आंखों से। उसी तरह से ये आत्मा, रूह, स्पिरिट, ये एक शक्ति है, इनको इन आंखों से नहीं देख सकते, बहुत सूक्ष्म है। तो मेरी जो सत्य पहचान है कि मैं एक आत्मा हूं। सॉरी, मैं
ये जो मैं बता रही थी, इट्स अबाउट ब्रह्मा कुमारीज. इज द फाउंडर, सॉरी, फाउंडर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन दादा लेखराज कृपलानी. ये हमारा लॉकडाउन का पीपीटी है, दैट्स वाई वो हमारे दादीज दिखाए हुए हैं जो एडमिनिस्ट्रेटर थे. ये ब्रह्मा कुमारीज के जो सेंटर्स है ऑल ओवर द वर्ल्ड, उसका इमेज है. एंड यहाँ पर हर एक धर्म के, हर एक कास्ट के लोग आकर के मेडिटेशन सीखते हैं. दिस इज अबाउट द ब्रह्मा कुमारीज. नाउ दिस इज द फर्स्ट लेसन. दिस इज हु एम आई. यहाँ पर ये दिखाया है कि हम जब भी बोलते हैं इंसान के बारे में, जब भी बात करते हैं, वी ऑलवेज से दैट ह्यूमन बीइंग. सो ह्यूमन इज ह्यूमस, शरीर मिट्टी, बीइंग इज एनर्जी. सो इट्स द कॉम्बिनेशन ऑफ ह्यूमस एंड एनर्जी, शरीर और आत्मा, जिसको हम ह्यूमन बीइंग या जीवात्मा कहते हैं. यहाँ दिखाया है शरीर 5 तत्वों का बना हुआ है, 5 एलिमेंट्स. कौन से 5 एलिमेंट्स हैं? आकाश, धरती, अग्नि, जल, वायु. ये शरीर इन तत्वों का बना है. जब भी कोई तत्व इसका लेवल कम होता है, शरीर रिएक्ट करता है. कम या ज्यादा होता है तो शरीर रिएक्ट करता है. पानी चाहिए, ऑक्सीजन का लेवल कम हुआ है, भूख लगी है, राइट. तो ये कई बार टेम्परेचर कम ज्यादा होता है तो भी शरीर रिएक्ट करता है. एंड वी नो द सॉल्यूशन कि कैसे मुझे इस शरीर की जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करना है. उसी तरह से आत्मा जो है 7 गुणों की बनी हुई है. इट्स अ सोर्स ऑफ यूनिक लाइट. आत्मा का उन्होंने ये दिया है, फुल फॉर्म दिया है, सोर्स ऑफ यूनिक लाइट. यहाँ बताया है सोल, आत्मा, एनर्जी. यहाँ आत्मा कहाँ रहती है इस शरीर में? वो स्थान बताया है मस्तक के बीच में. 2 ब्रेन्स जो है उसके अंदर में बीच में एक वाइट लाइट है, जिसको हम आत्मा या रूह कहते हैं. सी दिस इज द इन द सेंटर ऑफ द फोरहेड, इनसाइड समवेयर. 2 ब्रेन्स के बीच में दिखाया है. इट्स अ स्पार्कलिंग लाइट. इस इस लाइट का जो इमेज है ना, उसको थोड़ा आप अपने मन के अंदर फिट कर लीजिएगा, क्योंकि हम जब भी मेडिटेशन करेंगे तब इस लाइट को हम विजुअलाइज करेंगे. ठीक है? सो क्लियर है ये इमेज आपको? परफेक्ट, थैंक यू. यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है कार और ड्राइवर का. मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी, आप चाहे तो उसका रिप्लाई चैट बॉक्स में डाल सकते हो. जब भी किसी की मृत्यु होती है तो हम 4 जन उठाकर उनको लेकर जाते हैं. ठीक है? तो क्या लेकर जाते हैं, हम क्या कहते हैं? आप बोल सकते हो या तो चैट बॉक्स में डाल सकते हो. बॉडी लेकर जा रहे हैं, मिट्टी लेकर जा रहे हैं, कुछ थोड़े रॉयल शब्द, शव लेकर जा रहे हैं, और कुछ हाँ बोलते हैं राम नाम सत्य है बोलते हैं, बट क्या लेकर जा रहे हैं? पार्थिव शरीर लेकर जा रहे हैं. बहुत अच्छा. और कुछ हम कहते हैं अर्थी लेकर जा रहे हैं, राइट. अर्थी बोलते हैं. एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अर्थी? ये शरीर जो है एक रथ है. रथ, चैरियट. शरीर एक रथ है, और इस रथ को चलाने वाली जो शक्ति है, जो एनर्जी है, उसे सारथी कहा जाता है. ठीक है? रथ चलाने वाले को हम सारथी कहते हैं. पर जब वो सारथी या रथी इस शरीर में नहीं है, इट्स विदाउट ड्राइवर, विदाउट सारथी, तो इस शरीर को कहा जाता है अरथी. रथी नहीं है, ड्राइवर नहीं है, इसलिए 4 लोग उठाकर लेकर जा रहे हैं. Got it? इसे कहा जाता है अरथी, जहां ड्राइवर नहीं है. सो हम आत्माएं इस शरीर रूपी गाड़ी की ड्राइवर है, और ड्राइवर हमेशा आगे बैठता है. रिवर्स भी करना है तो भी आगे ही बैठता है. उसी तरह से जो सोल है, जो ड्राइवर है, जो कंट्रोलर है, इट सिट्स हियर इनसाइड द फोरहेड. यहां रह करके
पूरी बॉडी को कंट्रोल कर रहे हैं, आंख नाक कान के द्वारा, मुख के द्वारा, सब कंट्रोल कर रहे हैं। अभी अपने से पूछना होगा, क्या मेरी जबान, मेरी वाणी मेरे कंट्रोल में है? आपको लग रहा है आपकी जो सेंसेस है, आंख नाक कान मुंह, ये हमारे कंट्रोल में है? क्या कहते हो? हाँ जी ना जी? लग रहा है कंट्रोल में? जी, कुछ हद तक तो हम कंट्रोल कर ही लेते हैं। नहीं बोलना है, मुझे बोलना ही नहीं है, कुछ भी हो जाए। सो ऐसे कहा जाता है, दीज आर आवर स्थूल सेंसेस, जिसको हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, ठीक है ना। बट जो कुछ सूक्ष्म कर्मेंद्रियां है, जिसको हम टच नहीं कर सकते, उन कर्मेंद्रियों को भी मुझे कंट्रोल करना है। जब कभी हम कहते हैं कि मुझे नहीं बोलना था, गुस्से में मैंने बोल दिया, उसके बाद मुझे रियलाइज हुआ, इट मीन्स मेरे कर्मेंद्रियां मेरे कंट्रोल में नहीं है, जबकि आई एम द मास्टर। अच्छा, आई गिव यू एन एग्जांपल। जब आप अभी, शायद आप सभी अपने कंपनी में ऑफिस में बैठे होंगे, राइट? और सपोज आप कुछ सीनियर लेवल पर हो, आपके अंडर में और 5-10 लोग काम कर रहे हैं, एंड जिस दिन आपने हाफ डे लिया या जिस दिन आप नहीं आ रहे हो, उस दिन भी आपके सबॉर्डिनेट्स ऐसा ही काम करते हैं जैसा आपकी प्रेजेंस में करते हैं, या थोड़ा लाइट हो जाते हैं, थोड़ा इजी हो जाते हैं, थोड़ा चिट चैट कर लेते हैं इधर? क्या कहते हो? थोड़ा उनका बिहेवियर चेंज होता है व्हेन यू आर नॉट देयर, राइट? सो जबकि आप कंट्रोलर हो, आप व्हाट वी से, आप उस सीनियर हो, तो वो आपकी प्रेजेंस में थोड़ा अच्छे से सिंसियरली वर्क करते रहे। ऐसे नहीं आपकी एब्सेंस में नहीं करते होंगे, बट थोड़ा डिफरेंस तो आ ही जाता है। एंड द सोल, द मास्टर, द कंट्रोलर, वो जबकि है यहीं पर, तब भी ये सेंसेस काम नहीं करती है ढंग से, जबकि हम कंट्रोलर है। क्यों काम नहीं करती है? बिकॉज हमारी अवेयरनेस नहीं है दैट आई एम द कंट्रोलर, राइट? अभी हम इस मेडिटेशन में अपने सेंसेस को ये गाइड करते हैं, सी आई एम द कंट्रोलर एंड यू आर गोइंग टू लिसन टू मी। अपने सेंसेस से हम बात करते हैं, उनके द्वारा कर्म कराते हैं। यहाँ एक बहुत सुंदर इमेज दिया है, ये कॉस्ट्यूम है और ये एक्टर है, राइट? सो ये बॉडी जो है हमारे लिए एक कॉस्ट्यूम है, या कहो एक वस्त्र है। ये यहाँ पर सेंसेस बताए हैं, कर्मेंद्रिया बताए हैं, जैसे हमने कहा आंख नाक कान, तो ये सेंसेस है। और ये आत्मा की 3 ऐसी शक्तियां है, ऐसी फैकल्टीज है, जिसको हम स्पर्श नहीं कर सकते, बट वेरी पावरफुल फैकल्टीज। माइंड, इंटेलेक्ट एंड संस्कार। माइंड का काम क्या होगा? हम पूरे दिन बोलते हैं, माइंड माइंड, मेरा माइंड ठीक नहीं चल रहा है, मेरा माइंड स्टेबल नहीं है, मेरे मन को आज शांति की फीलिंग्स मुझे करानी है। सो व्हाट इज माइंड? माइंड इज बेसिकली सोल की सोचने की शक्ति, थॉट पावर। माइंड कंटिन्यूअस थॉट्स क्रिएट करता है। साइकोलॉजिस्ट कहते हैं 1 मिनट में वी क्रिएट 30 to 40 थॉट्स, अगर वो नॉर्मल थॉट्स है तो। हाँ, अगर हम नेगेटिव सोच रहे हैं, डर है, एंगर है, तो उससे बढ़ जाते हैं। जस्ट इमेजिन 30 to 40 थॉट्स। सो माइंड कभी रेस्ट नहीं करता है, एक कंटिन्यूअस प्रोडक्शन चल रहा है माइंड के अंदर थॉट्स का। इंटेलेक्ट इज आवर क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट। सो नाउ नीड टू आस्क, हमारा क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट ठीक चल रहा है? इज इट वर्किंग? या अगर हमने सोचा कि हमारा प्रोडक्ट तो बहुत अच्छा है, वी डोंट रिक्वायर दिस क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट, चल जाएगा? नहीं चलेगा। हमें कंटिन्यूअस कंट्रोल करना होगा। सो अभी हम अपने अपने आप से पूछे कि क्या यहाँ जो मेरा क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट है, दैट इज इंटेलेक्ट, इंटेलेक्ट एक छलनी के जैसा काम करता है। जैसे हम चाय बनाते हैं तो उसको छानते हैं, उसी तरह से माइंड
क्रिएट करता है बहुत सारे थॉट्स, इंटेलेक्ट उसको विजुअलाइज करता है और उसमें से डिसीजन लेता है, सही क्या है, गलत क्या है, क्या करना है। हम हमेशा कहते हैं सोच समझ के करना। सो सोचना माइंड का काम, समझना इंटेलेक्ट का काम। पर आजकल हम लोग सोचे किया, सोचा किया, इंटेलेक्ट ज्यादा यूज नहीं होता है। ये करूंगी तो क्या होगा, अच्छा होगा बुरा होगा, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, लास्ट टाइम क्या हुआ था। सो अभी हम इतना स्पेस नहीं देते हैं, इतना रोल इंटेलेक्ट का यूज नहीं करते हैं। सो इंटेलेक्ट का रोल है विजुअलाइज करना। विजुअलाइज करने के साथ साथ उसको जज भी करता है इंटेलेक्ट, करना है नहीं करना है। यहाँ पर माइंड दिखाया है, माइंड में हम कितने थॉट्स क्रिएट करते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, वेस्ट एंड ऑर्डिनरी। अच्छा, आप बताएंगे हम सबसे ज्यादा किस टाइप के थॉट्स क्रिएट करते होंगे, पॉजिटिव, नेगेटिव, वेस्ट या ऑर्डिनरी? सबसे ज्यादा थॉट्स हमारे कौन से होते हैं? ऑर्डिनरी, वेस्ट, ओके। ऑर्डिनरी थॉट्स मतलब आज 10 बजे हमारा सेशन है, इज ऑर्डिनरी थॉट। वेस्ट थॉट मतलब और पता नहीं यूजफुल होगा या नहीं होगा, करूं या नहीं करूं, अननेसेसरी थॉट्स, उसको हम कहेंगे वेस्ट थॉट्स। नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव अर्थात जो हम हमेशा डिप्रेस्ड वाले थॉट्स क्रिएट करते हैं, उसको हम नेगेटिव थॉट, मेरे से नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊंगी, वो है ही ऐसा, वो कभी सुधरेगा ही नहीं, दीज आर द नेगेटिव थॉट्स। साइकेट्रिस्ट कहते हैं हम ज्यादा से ज्यादा वेस्ट थॉट्स यूज करते हैं, 70 to 80%। जो ऑर्डिनरी थॉट्स है ना, दीज आर एक्चुअली यूजफुल थॉट्स, मुझे ये करना है, बट उस करना, फॉर एग्जाम्पल दिस इज माई मोबाइल, मैं उसको यहाँ रख रही हूँ, साइड में मुझे रखना है, सो आई रिक्वायर अ सिंगल थॉट कि मुझे मोबाइल को यहाँ रखना है, बट व्हाट आई विल डू इज, मैं बार बार अच्छा यहाँ रखू नहीं रखू, यहाँ से गिर जाएगा, इससे अच्छा है यहाँ रख देती हूँ, यहाँ रखूंगी तो डिस्टर्ब करता रहेगा, इससे मैं यहाँ रख देती हूँ, अच्छा स्विच ऑफ करूँ नहीं, सो आई विल क्रिएट 10 थॉट्स इंस्टेड ऑफ 1। तो इसको हम कहेंगे वेस्ट थॉट्स। जो हम पास्ट के बारे में ज्यादा सोच लेते हैं, एक्सट्रीम फ्यूचर का सोच करके टेंशन लेते हैं, उसको हम कहेंगे वेस्ट थॉट्स। तो ज्यादा से ज्यादा हमारे वेस्ट थॉट्स होते हैं। पॉजिटिव थॉट का एक एग्जांपल दे सकते हैं, सिंपल एग्जांपल, हम स्कूल टाइम में ये करते थे, मेक अफर्मेटिव, पॉजिटिव सेंटेंस बनाओ, राइट? तो कुछ एग्जांपल दे सकते हैं पॉजिटिव थॉट का। मेरे ख्याल से आप सभी चैट बॉक्स में ज्यादा कंफर्टेबल है, नहीं? I can do it. Yes. This program will help me a lot. Okay, thank you so much. I'm a powerful soul. Yes, yes, yes. बहुत अच्छा। सो जो क्वालिटीज के आधार पर, जो गुणों के आधार पर थॉट्स क्रिएट किए जाते हैं, उसे हम कहते हैं पॉजिटिव थॉट्स। वेरी सिंपल, आई एम पीसफुल, आई एम हैप्पी, आई एम कंफर्टेबल, आई एम यूनिक, आई एम स्पेशल, राइट? सो दीज आर दी पॉजिटिव थॉट्स। नेगेटिव थॉट्स का मैं एग्जाम्पल नहीं देती हूँ, हमें बहुत अच्छे से पता है व्हाट आर द नेगेटिव थॉट्स। ओके, नाउ यहाँ पर थॉट्स बताए, व्हाट आर द पॉजिटिव थॉट्स। दीज आर द 7 virtues, 7 values। जैसे शरीर 5 तत्वों का बना हुआ है, वैसे आत्मा 7 values की बनी हुई है। और यहाँ पर ये 7 गुण दिखाया है, पावर, प्यूरिटी, हैप्पीनेस, लव, पीस, नॉलेज, ब्लिस। इसमें से एक भी चीज नेगेटिव है ना? एक भी चीज नहीं। और आपको ये जानकर हैरानी होगी, अगर आज कोई टेररिस्ट भी है, वो सोल भी इन्हीं 7 values की बनी हुई है। पर ये वैल्यूज जो है, ये वर्च्यूज जो है, थोड़ा सा दब गए हैं, और उसके ऊपर आया है ईगो, एंगर, ग्रीड। तो इन वर्च्यूज को हमने जैसे कि मर्ज कर लिया है, दे आर स्टिल देयर, दे आर देयर इनसाइड,
बट हम उसको फील नहीं कर पा रहे, उसको इमर्ज नहीं कर पा रहे, क्योंकि उसके ऊपर कुछ ऐसा अंधियारा आ गया है, नेगेटिविटी आ गई है। बट दिस इज व्हाट वी आर। इट्स लाइक पानी का जो फॉर्मूला है, इट्स H2O। कोई भी पानी हो, बट इट्स H2O। पर और वो ट्रांसपेरेंट होता है। अगर मैंने उसमें नील डाला या कोई डिफरेंट कलर डाला, तो वो उस कलर का रूप ले लेगा, बट स्टिल इट्स H2O। उसी तरह से ये हमारा बेसिक क्वालिटीज है, ये हमारा नेचुरल नेचर है। कई बार जब हमें कोई पूछता है आपका रिलीजियन क्या है, आपका धर्म क्या है, तो धर्म अर्थात नेचुरल नेचर, तो हम कहते हैं हमारा धर्म है शांति। और हर आत्मा का धर्म होता है शांति, खुशी, प्यार, क्योंकि नेचुरल नेचर है, उसी में वो कंफर्टेबल होते हैं। तो दीज आर द 7 वैल्यूज, 7 वर्च्यूज ऑफ द सोल, 4 वैल्यूज जिसे हम कहते हैं। और ये 7 वैल्यूज के आधार पर जब हम थॉट्स क्रिएट करते हैं, तो पॉजिटिव थॉट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट, अगर आप उसको स्क्रीनशॉट लेना चाहो या आप इसको फोटो क्लिक करना चाहो, वेरी इंपॉर्टेंट। इफेक्ट्स ऑफ 7 वर्च्यूज ऑन 7 बॉडी सिस्टम। ज्ञान की जो असर है वो ब्रेन के पर होती है। ब्लिस, ब्लिस अर्थात आनंद, वो हमारे हॉर्मोन्स पर होती है। शांति, ENT सिस्टम पर। स्नेह, प्यार, हमारे हार्ट पर। प्यूरिटी अर्थात पवित्रता, शुद्धता, वो हमारे स्किन और हमारे ब्लड पर उसकी असर होती है। हैप्पीनेस की सॉरी हैप्पीनेस की हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पर असर होती है। शक्ति की हमारे मसल्स और बोन्स पर असर होती है। तो ये अगर इसमें कुछ ना कुछ कमी है हमारे ये 7 वर्च्यूज में, तो इस पर असर होगी। तो इसीलिए 7 गुणों को हमें बहुत अपने आप, 7 गुणों से अपने आप को एम्पावर करना है। ओके, यहाँ नेगेटिव थॉट्स दिखाए हैं, वो किस आधार पर हो रहे हैं वो भी बताया है। लस्ट, एंगर, ग्रीड, अटैचमेंट, उसके आधार पर नेगेटिव थॉट्स क्रिएट होते हैं। वेस्ट थॉट्स जो है पास्ट और फ्यूचर। सी, पास्ट के बारे में सोचना समझना, इट्स नॉट हार्मफुल, बट बहुत ब्यूटीफुली किसी ने कहा है, पास्ट इज वेरी ब्यूटीफुल प्लेस टू विजिट, नॉट टू सिट। पास्ट में गए, कुछ एक्सपीरियंस को साझा किया, कम बैक। फ्यूचर के बारे में सोचना, प्लान करना बहुत जरूरी है, बट फ्यूचर के बारे में सोच करके टेंशन लेना, ये राइट नहीं है। तो इसको वेस्ट थॉट्स बताए हैं। ऑर्डिनरी थॉट्स तो हमें क्लियर है कि हमें अपने कारोबार के बारे में सोचते हैं। यहाँ इंटेलेक्ट का बताया है, इंटेलेक्ट का रोल क्या है। ये हमारी थर्ड आई है, इनर आई। इंटेलेक्ट का रोल होता है विजुअलाइज करना, अंडरस्टैंड करना, रीजनिंग, एनालिसिस, डिस्क्रिमिनेट्स, और फिर डिसाइड करना। इसीलिए यहाँ पर तराजू दिखाया है, स्केल दिखाया है, ये इंटेलेक्ट का रोल है। एंड संस्कार, संस्कार इज इम्प्रेशन ऑफ कर्म। संस्कार अर्थात कोई कर्म जब हम बार बार रिपीट करते हैं, तो वो हमारी आदत बन जाती है, वो हमारी पर्सनालिटी बन जाती है, हैबिट हो जाती है, उसको हम कहते हैं संस्कार। एक छोटी सी आपके साथ एक्टिविटी करना चाहूंगी। मैं समझती हूँ पुष्पांजलि, मैं आपके साथ करूँ ये एक्टिविटी? आप थोड़ा सा बिजी है, बट आई एम गोइंग टू डू इट विथ। No, no, no. ओके, Sure, sure. हाँ ठीक है, थैंक यू पुष्पांजलि। इट्स अ स्मॉल एक्टिविटी, देन वी विल वाइंड अप। पुष्पांजलि, आई विल आस्क यू सम क्वेश्चंस, इज इट ओके? ओके, पर आपको उसको फास्ट 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 जवाब देना है। अगर आपसे ये कराया गया हो तो आप मुझे बता सकते हो कि दीदी ये हो गया है, आप उसका फास्ट जवाब देंगे, ठीक है? Okay. ओके, पुष्पांजलि, व्हाट इज द कलर ऑफ माय साड़ी? White, व्हाट इज द कलर ऑफ माय ब्लाउज? white, व्हाट कलर ऑफ योर ड्रेस यू आर वेयरिंग? white, व्हाट इज द कलर ऑफ माय साड़ी? white, व्हाट इज द कलर ऑफ योर ड्रेस? white, व्हाट इज द कलर ऑफ माय ब्लाउज? white, व्हाट इज द कलर ऑफ माय साड़ी? white, व्हाट इज द कलर ऑफ योर ड्रेस? white. What does the cow drink? Cow What does the cow drink. fast? What does the cow drink fast? Water, Okay. जब आप इतना टाइम लेकर बोलेंगे तो आप जरूर वाटर बोलेंगे। अच्छा, किसके किसके मन में मिल्क आया था?
Milk, right? It happens, yes. So we call it sanskar. Thank you, Pushpanjali. Thank We call it sanskar because माइंड में जब व्हाइट 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 आता है तो गाय के कनेक्शन में व्हाइट क्या आता है? मिल्क. सो हमारा फर्स्ट जो थॉट इंप्रेशन जो है मिल्क, बिकॉज व्हाइट व्हाइट के संस्कार हो गए. सी विद इन 1 मिनट व्हाइट व्हाइट व्हाइट. तो जब हम कोई कर्म या कोई थॉट बार बार करते हैं तो इट बिकम्स आवर संस्कार, मेमोरी. फिर उसके अकॉर्डिंग ही हम कर्म करते हैं. किसी को सच बोलने के संस्कार होते हैं, किसी के गाली बोलने के संस्कार होते हैं. तो जहां आवश्यकता नहीं होगी वहां भी गाली बोलेंगे, बिकॉज वो संस्कार हो गए हैं. सो ये जो 7 वैल्यूज दिखाई, देना है. I am a peaceful soul. Peace is my natural nature. I am a powerful soul. I am a pure soul. तो ये वैल्यूज को मुझे, हेलो, ओके. you. We can listen you. I request all to please mute yourself, please. ये जो संस्कार है, जो मेरे नेचुरल नेचर है, वो मुझे प्रैक्टिस करना है तो ये ऑटोमेटिक उभर कर आएगा. मैं उसको बाहर ऐसे निकाल नहीं सकती हूँ. सिर्फ उसको मुझे अपने आप को स्मृति दिलानी है, उसको प्रैक्टिस करना है. जो प्रैक्टिस करेंगे वो एक्सपीरियंस करेंगे. मैं एंगर की प्रैक्टिस बार बार करूंगी, उसको एक्सपीरियंस करूंगी. मैं पीस की प्रैक्टिस बार बार करूंगी, उसको एक्सपीरियंस करूंगी. सो दीज आर माई कोर वैल्यूज, 7 संस्कार्स, एंड दिस इज आवर होमवर्क फॉर टुडे होल डे. आज रिवाइज करना है आपने जो सुना. आप अपने घर जाकर या अपने कलीग्स के साथ विद इन 5 मिनट्स यू कैन शेयर जो जो आपको ध्यान रहा. आपको उसको एनालाइज भी करना है, क्योंकि हमने जो कहा वो एक्सेप्ट करो, उसको एनालाइज करो, उसको आप समझने का प्रयास करो, एक्सपेरिमेंट करने का प्रयास करो. प्लीज राइट डाउन क्वेश्चंस इन केस एनी. अगर आपको कुछ क्वेश्चंस है आप घर जाकर भी सोच करके लिख सकते हो. और आपको ये अभी हम 1 मिनट के लिए मेडिटेशन करेंगे जो आपको 5 टाइम्स करना है. सोने के पहले, भोजन के पहले, कल मॉर्निंग उठने के बाद, राइट. और अभी हम एक बारी प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है. आई थिंक दिस इज आवर लास्ट स्लाइड. या दिस इज द इमेज ऑफ सोल. ओके. सो ये मैं इमेज आपके सामने रखती हूँ. हम थोड़ा स्ट्रेट बैठेंगे. या आप आंखें खुली रखकर मेडिटेशन करेंगे, सो दैट इस इमेज को हम यूज करेंगे अपने मेडिटेशन के लिए. अपने सारे थॉट्स को वाइंड अप कर लीजिए और एक सुंदर थॉट, पॉजिटिव थॉट क्रिएट करें. मैं एक चमकती हुई लाइट हूँ. एक चैतन्य शक्ति मस्तक के बीच में, जो सामने इमेज में दिख रहा है. मैं अपने आप को विजुअलाइज कर रही हूँ मस्तक के अंदर. आई एम अ डिवाइन सोल. आई एम द मास्टर, आई एम द कंट्रोलर ऑफ दिस बॉडी, द ऑर्गन्स. मैं आत्मा अमर हूँ, अविनाशी. मैं ये चमकता हुआ शांति का सितारा हूँ. शांति मेरा ओरिजिनल नेचर है, मेरा धर्म है. और आज सारा दिन मैं इसी ओरिजिनल नेचर को, स्वयं को रिमाइंड करती रहूंगी. आज सारा दिन मैं कोई भी कार्य बहुत शांतिपूर्वक करूंगी. अगर मेरा कोई कार्य पूरा ना भी हो तो भी मैं अपने मन को स्टेबल रखूंगी. पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट करूंगी.
और कल सुबह के सेशन तक मैं महसूस करूंगी कि मैंने कितनी बारी अपनी शांति को अनुभव किया और कितनी बारी शांति को मैंने साइड में रख दिया। Again, I remind myself, I am a divine soul, peaceful soul. ओम शांति। हमने सिर्फ 2 मिनट के लिए ये मेडिटेशन किया। आप अगर YouTube पर, सॉरी मैं अभी मैसेज चैट बॉक्स में देखा, तो ये मेडिटेशन 2 मिनट का हम कभी भी कहीं भी ब्रेक में भी कर सकते हैं। आप ट्रैवल कर रहे हो उस समय भी कर सकते हैं, एनी टाइम, जस्ट 2 मिनट्स। हम 2 मिनट से शुरू करें, हमारे माइंड को हम कैसे कंसंट्रेट करते हैं उस समय हम चेक करें। एनी क्वेश्चंस प्लीज? Anybody Again, has any question? Okay, maybe so Didi, we have question and answer session along with the revision at the very last Tuesday of the month, and we run this okay, session every Tuesday of a week. So, okay, okay, yeah. sister, no problem. Okay, okay. Thank you so much. Thank you so much, Didi, for conducting मैं the session. थैंक यू Thank you. हम आपको इनवाइट करते हैं बोईसर के जिंदल में। आप जरूर विजिट करिए। आप बॉम्बे आते हो, बोईसर में जरूर विजिट कर सकते। बहुत सुंदर यहाँ पर आश्रम बने हुए हैं। सो एक बार आपने वहां के सेंटर को विजिट किया है? I think many of the employees have visited centers of Delhi ग्रेट, NCR. ग्रेट, Yes. ग्रेट, ग्रेट। So we do have आप सबको sessions हम here. इनवाइट, Okay. थैंक यू सो मच। मैंने शायद आपके 7-10 मिनट ज्यादा ले लिए, उसके लिए सॉरी। थैंक यू। ओम शांति। No problem, Didi. Thank you so much. Dear all, let's meet next week with the new lessons and the learnings and share some of our healthy experiences which we have received from Jagriti Didi today. Didi, thank you so much again for conducting the session, and we will really remember the lessons which you have shared us today. Thank you. थैंक यू। Om ओम Shanti. शांति। Thank you.